Hello everyone. How are you today? I hope you are fine today. Now take your Gulmohar book class 1. Okay? Now open this book. Page number 97. And the lesson is Lesson 12, Champa's Fruit Basket. Champa's Fruit Basket. Now get ready to read the lesson. Okay? The first line is, there was a big garden in Champa's house. Once again, there was a big garden in Champa's house. There were many fruit trees in her garden. I am going to Pony's house, Champa said to her mother. I am taking some fruits for her. She likes to eat fruits. All right, said her mother. Come home soon. Champa put 3 bananas and 2 guavas in a basket. Then she said, bye, mother, and began to walk towards Pony's house. On the way, there was a small tree. A monkey sat on the branch of the tree. It saw the basket and said, aha, I like bananas. Once again, read the lesson. There was a big garden in Champa's house. There were many fruits trees in her garden. I am going to Pony's house, Champa said to her mother. I am taking some fruits for her. She likes to eat fruits. All right, said her mother. Come home soon. Champa put 3 bananas and 2 guavas in a basket. Then she said, bye, mother, and began to walk towards Pony's house. On the way, there was a small tree. A monkey sat on the branch of the tree. It saw the basket and said, aha, I like bananas. And now turn the page. Okay. Page number 98. Page number 98. Now start from here. It bent down from the tree and took the bananas. Champa did not see the monkey. There were 2 parrots nearby
They looked at the basket. Guavas, said the parrots. We like guavas. They flew down and took the guavas. Champa did not see the parrots. A cow looked at Champa. It saw the big basket in Champa's hand. The cow was frightened. "Moo," said the cow. It jumped and bumped into an orange tree. Some oranges fell into Champa's basket. Champa did not see the oranges. Soon Champa reached Pony's house. "Hello, Pony," she said. "Here is some fruits for you." Read it once again. It bent down from the tree and took the bananas. Champa did not see the monkey. There were 2 parrots nearby. They looked at the basket. "Guavas," said the parrots. "We like guavas." They flew down and took the guavas. Champa did not see the parrots. A cow looked at Champa. It saw the big basket in Champa's hand. The cow was frightened. "Moo," said the cow. It jumped and bumped into an orange tree. Some oranges fell into Champa's basket. Champa did not see the oranges. Soon Champa reached Pony's house. "Hello, Pony," she said. "Here is some fruits for you." Now the next page. The page is page number 99. The page number 99. Now look here and read it. "Thank you," said Pony. "I like oranges." "Oranges," said Champa. "Where did the bananas and the guavas go?" Once again, read it. "Thank you," said Pony. "I like oranges." "Oranges," said Champa. "Where did the bananas and the guavas go?" Now the new word is reached. Reached. Now, my dear students, read the lesson carefully. Read this lesson carefully again and again and enjoy the lesson. Okay. Now I will explain this lesson
in Hindi. Okay? Now listen carefully and read it with me. Okay? Now start. There was a big garden in Champa's house. चंपा के घर में एक बड़ा बागीचा था. There were many fruits trees in her garden. There were many fruit trees in her garden. उसके बागीचे में बहुत से फलों के पेड़ थे. उसके बागीचे में बहुत से फलों के पेड़ थे. I am going to Pony's house, चंपा said to her mother. चंपा अपनी माँ से कहती है कि मैं पोनी के घर जा रही हूँ. I am taking some fruits for her. She likes to eat fruits. मैं कुछ फल उसके लिए ले रही हूँ. वह फलों को खाना पसंद करती है. All right, ठीक है, said her mother. उसकी माँ कही, ठीक है. Come home soon, घर जल्दी आना. उसकी माँ क्या कहती है? घर जल्दी आना. चंपा put 3 bananas and 2 guavas in a basket. चंपा 3 केले और 2 अमरूद अपनी टोकरी में रखी. चंपा क्या क्या रखी अपनी टोकरी में? 3 bananas and 2 guavas. चंपा अपनी टोकरी में 3 केले और 2 अमरूद रखी. Then means तब. She said, वह कही, Bye mother. Bye mother. Bye means अलविदा. Mother means माँ. वह क्या कही? वह कही, अलविदा माँ. And began to walk towards Pony's house. और पोनी के घर की तरफ चलने लगी. Towards means की तरफ. और वो कहाँ चलने लगी? पोनी के घर की तरफ. पोनी के घर की तरफ कौन जाने लगा? चंपा. पोनी के घर की तरफ कौन जाने लगा? चंपा. चंपा पोनी के घर की तरफ चलने लगी. On the way, रास्ते में. वे मीन्स रास्ता. On the way, रास्ते में. There was a small tree. रास्ते में एक छोटा पेड़ था. रास्ते में क्या था बच्चों बताइए? रास्ते में एक छोटा पेड़ था. A monkey sat on the branch of the tree. एक बंदर. मंकी मीन्स क्या होता है बच्चों? बंदर. एक बंदर. sat मीन्स बैठा था. on the branch डाल पे. of the tree पेड़ के. तो हम पढ़ेंगे, एक बंदर पेड़ की एक डाल पर बैठा था. पेड़ की डाल पे कौन बैठा था बच्चों बताइए? पेड़ की डाल पे एक बंदर बैठा था.
It saw the basket and said, यह क्या देखा? यह टोकरी देखा और कहा। टोकरी कौन देखा? मंकी। टोकरी को मंकी देखा और कहा, आहा, आई लाइक बनानास। अरे वाह, आहा मीन्स अरे वाह, आई लाइक बनानास, मुझे केले पसंद हैं। मंकीज़ को क्या पसंद है बताइए? मंकीज़ को केले बहुत पसंद होते हैं। क्या आपको केले पसंद हैं? यू लाइक बनानास? यस, यू लाइक ऑल्सो? ओके। Look at the picture. This is Champa and she is her mother. You can see here a banana tree and this is banana and this is Champa's fruit basket. What can you see in this basket? Bananas and guavas. चंपा अपनी टोकरी में क्या लेके जाती है? बनाना और गुआवास, केले और अमरूद लेके जाती है। और ये क्या बोल रही है इस पिक्चर में? अपनी माँ को बाय बोल रही है ना। आप भी जब कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? माँ को बाय बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। ओके, इट्स अ गुड मैनर टू से बाय बाय। और आप कहीं जाते हैं तो हेलो बोलते हैं। किसी को मिलने पे आप क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं ना। तो आप जब किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो। और जब वहाँ से जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय या गुड बाय या फिर बाय बाय आप बोलते हैं ना। ओके, नाउ लुक हियर and read it with me. It bent down from the tree and took the bananas. यह पेड़ से नीचे झुका, बेंट मीन्स नीचे झुका हुआ। यह पेड़ से नीचे झुका और केले ले लिया। कौन ले लिया केले? मंकी। पेड़ से मंकी झुका और क्या किया? केले ले लिया। चंपा डिड नॉट सी द मंकी। चंपा बंदर को नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मंकी तो यहाँ पीछे से, उसके पीछे से ना ऐसे केले ले लिया छुपके, और चंपा को पता भी नहीं चला क्योंकि वो तो मस्ती में आगे चल रही थी। गाते गुनगुनाते वो चलते जा रही थी अपने रास्ते पे, इसलिए वो मंकी को नहीं देख सकी। अब क्या होता है आगे देखिए। There were two parrots nearby. Nearby means पास में। पास में दो तोते थे। पास में क्या थे? दो तोते थे। They looked at the basket. वे टोकरी को देखे। वे कहाँ देखे? वो टोकरी देखे। Guavas, said the parrots. तोते ने कहा, दोनों तोतों ने क्या कहा? गुआवास, अमरूद। अमरूद देख के ये पैरट्स बहुत हैप्पी हो गए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि इन्हें तो इन पैरट्स को गुआवास खाना तो बहुत पसंद होता है। आपने देखा है पैरट्स को देखा है गुआवा खाते, कितने पसंद से खाते हैं ना। नाउ गुआवाज सेड द पैरट्स। पैरट खुशी से बोले गुआवाज,
वी लाइक guavas, हमें अमरूद पसंद है, हमें अमरूद पसंद है। आप यहाँ देखिए, पिक्चर में देखिए कैसे ये पैरट्स यहाँ से गुआवा लेके उड़ जाते हैं और चंपा को पता भी नहीं चलता। ये तो रास्ते में गाते गुनगुनाते हुए चल रही है। यहाँ एक बटरफ्लाई है, उसे देख रही है। इसका ध्यान अपने टोकरी पे नहीं रहता है। और यहाँ मंकी पहले मंकी इसके केले ले लिया और अब पैरट्स इसके दोनों गुआवास देखे उड़ गए। They flew down and took the guavas. वे नीचे उड़ के नीचे आए और अमरूद ले लिए। चंपा did not see the parrots. चंपा दोनों तोतों को नहीं देख पाती है, नहीं देखी। चंपा तोते नहीं देखी। A cow looked at चंपा। एक गाय चंपा को देखी। कौन देखा चंपा को? एक गाय चंपा को देखी। It saw the big basket in चंपा's hand. यह चंपा के हाथ में एक बड़ी टोकरी देखी। The cow was frightened. गाय डर गई। गाय क्या हो गई? गाय डर गई। moo said the cow. गाय जोर से मो बोलने लगी, बोलती है। गाय क्या बोली जोर से? मो। What is मो? ये गाय के बोलने की आवाज़ है। गाय रंभाती है ना, रंभाना। गाय या बैल का रंभाना क्या होता है? मो। मो मीन्स गाय की बोली। It jumped and bumped into an orange tree. Jump means कूदना। यह कूदी और एक संतरे के पेड़ में जाके टकरा गई। बम्प्ड मीन्स टकरा जाना। तो यह कूदी और एक संतरे के पेड़ में टकरा गई। यहाँ आप देखिए पिक्चर में देखिए कैसे ये गाय इसे देखती है, डरती है और एक ऑरेंज के पेड़ में जाके टकरा जाती है। और जब ये टकराती है तो कुछ ऑरेंजेस जो हैं, पके हुए ऑरेंजेस हैं, ये इस पेड़ से टूट के चंपा के बास्केट में गिर जाते हैं। तो ये भी चंपा को नहीं पता चलता है। Some oranges fell into चंपा's basket. कुछ संतरे चंपा के टोकरी में गिर जाते हैं। चंपा did not see the oranges. चंपा संतरों को नहीं देखती है। चंपा संतरों को नहीं देखी। Soon, जल्दी ही, चंपा reached पोनी's house. जल्दी ही चंपा पोनी के घर पहुंच गई। रीच मीन्स पहुंचना, रिस्ट मीन्स पहुंच गई। जल्दी ही चंपा पोनी के घर पहुंच गई। हेलो पोनी, वह पोनी को हेलो बोलती है। कौन पोनी को हेलो बोलता है? चंपा। चंपा पोनी को ग्रीट करती है, हेलो। सी सैड, वह कही। वह क्या कही? हेलो पोनी। Here is some fruit for you. यहाँ तुम्हारे लिए कुछ फल हैं। यहाँ तुम्हारे लिए क्या है? फल है। वो बताती है पोनी को कि वह उसके लिए कुछ फल लेके आई है। Thank you, said पोनी। पोनी कहती है आपका धन्यवाद। पोनी क्या कहती है? आपका धन्यवाद। I like oranges. मुझे संतरे पसंद हैं। मैं संतरे पसंद करती हूँ। Oranges, said चंपा। चंपा आश्चर्य में बोलती है, संतरे?
अब वह अपनी टोकरी देखती है और क्वेश्चन करती है, वेयर डिड द बनानास एंड द गुआवास गो? केले और अमरूद कहाँ गए? चंपा अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में जब संतरे देखती है तो आश्चर्य से क्वेश्चन पूछती है कि केले और अमरूद कहाँ गए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चलता है कि कब मंकी उसके केले ले गया और कब पैरट्स उसके अमरूद ले गए और कब ऑरेंजेस उसके टोकरी में आके गिर गए, क्योंकि उसे तो ध्यान ही नहीं था ना इन बातों का। वो तो अपने मस्ती में, अपने धुन में गाते गुनगुनाते हुए चल रही थी, आसपास की चीज़ों को देखते हुए चल रही थी। उसे ध्यान ही नहीं था कि कब क्या घटना घट रही है। आई होप आप इस लेसन को बहुत इंजॉय किए होंगे। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसे हो जाती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, होती है ना। इसलिए अपने काम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। रास्ते में कभी भी आप चलते हैं तो प्रॉपर वे में चलिए और ध्यान दीजिए, ध्यान से चलिए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप समझ पाएँ, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। Now read the lesson carefully again and again. आप इस लेसन को बार बार पढ़िए और इसे याद भी कीजिए। ओके, गुड बाय।